Yes, No, sir. sir. Now, Yes, sir. Yes, sir. okay. So just put a message to your friends who have not joined. Please see in the participant list. जो friend आपके join नहीं है उनको message कर दो. You need to join. Okay. So basically, the most important part is we'll be doing with the first part, that is chemistry, and chemistry having a part. The first part that is known as synthetic fibers. Okay. Now, what do you mean by fibers first? So there are two types of fibers. One is natural fiber and one is artificial fiber. Okay. Now, नेचुरल फाइबर्स हमने कब पढ़े थे, कौन से क्लास में पढ़े थे, कोई बता सकता है मुझे? Sir, fourth. Yes, sir. Fourth. Okay. So fibers which are made by man is called, that man-made fibers are known as, what is that? What it is known as? Synthetic fibers. Synthetic Synthetic fiber. fibers. Now that synthetic fibers consisting of four topics. One is rayon, polyester, nylon, and acrylic. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Now fibers, we can say कि जो भी सिंथेटिक फाइबर्स रहते हैं उसको क्या होता है, बहुत सारा नंबर ऑफ केमिकल प्रोसेस करते हैं. The raw materials undergo lots of chemical process, and ये chemical process के थ्रू क्या बनता है हमारा पेट्रोकेमिकल. उसी पेट्रोकेमिकल्स को हम लोग और सिंप्लीफाई कर करके हमारे बनते हैं क्या, ये फाइबर्स. उस फाइबर्स में एक रहता है हमारा मोनोमर्स एंड एक रहता है पॉलीमर्स. तो जिसमें बहुत सारे यूनिट्स है, रिपीटिंग यूनिट्स. इफ यू कैन सी दिस रिपीटिंग यूनिट्स 1 2 3 4, they are not attached, they are having a different, see the space, you can see the space, they're having a space between the units, so it is called as monomers. So those molecules which are very small and small repeating units, the basic function is small repeating units, is called as monomers. Is it clear? Yes, sir. Yes. And another thing, when many monomers, जब ये बहुत सारे monomers, what happens, they get combined together, then it is called as polymer. So what do you mean by polymer? Poly means many and mer means unit, you can say, or a part, you can say. So polymers are of two types, the natural polymer and synthetic polymer. See cotton, आपने cotton सुनेंगे, cotton, wool, silk, ये कहाँ से मिलते हैं हमें, एनिमल से मिलते हैं कि नेचुरल प्रोसेस से मिलते हैं? नेचुरल प्रोसेस इज कंसिस्ट ऑफ एनिमल्स ओनली. ओके. सो ऐसे टाइप के पॉलीमर्स के अंदर एक चीज रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेलुलोस. क्या बोलते हैं उसको? Cellulose. एंड सेलुलोस इज अ पॉलीमर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ग्लूकोज यूनिट्स. इस सेलुलोस के अंदर होता है स्मॉल 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 यूनिट्स. दैट स्मॉल स्मॉल यूनिट्स इज एक्चुअली नोन एज ग्लूकोज. Is it clear? Yes, sir. Fibers are having topics rayon, nylon, polyester. Polyester is consisting of terylene, PET and acrylic. तो सबसे पहले हम लोग आते हैं रेयन में. रेयन क्या है? सबसे पहले इंसानों ने जब खोज किया तो ह्यूमन बींग्स वर नोन ओनली अबाउट सिल्क, एंड सिल्क इज हैविंग इट्स ओन शाइनिंग मींस लस्ट्रस प्रॉपर्टी, वी कैन से, or we can say they are very attractive. So human being, see, because it was very costly at that time, so human being wanted to make a replacement of this. So rayon was the first synthetic fiber which was produced artificially. Okay. And देखो, अब रेयन कहाँ से निकाला गया? वुड पल्प. पता है वुड पल्प क्या होता है? Yes, sir. Yeah. Wood Yes, sir. pulp is a part of a plant in which there are present, that the material present is cellulose. उस सेलुलोस को केमिकल प्रोसेस के थ्रू ह्यूमन बींग्स ने फर्स्ट टाइम एक सिंथेटिक फाइबर बनाया जो था हमारा रेयन. एंड इट इज वेरी चीप, इट वाज वेरी चीप अल्टरनेटिव टू सिल्क फाइबर, क्योंकि सिल्क बहुत महंगा था उस समय. सो ये क्या था, एग्जैक्टली सिल्क जैसा दिखता था रेयन को हम लोग. और इसकी खासियत क्या है, ये बहुत अच्छा गुड ऑब्जॉर्बेंट है. ऑब्जॉर्बेंट मतलब क्या होता है? ऑब्जर्व करना. ऑब्जर्व क्या करना? हम लोग जब कपड़े पहनते तो हमें क्या चाहिए कि हमें पसीना ज्यादा नहीं निकलना चाहिए, तो ये स्वेट ऑब्जर्व करने में ज्यादा हेल्प करता था. सो रेयन वाज अ गुड ऑब्जॉर्बेंट ऑफ स्वेट, फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, इट इज वेरी आइडेंटिकल टू कॉटन. ये बहुत सिमिलर है कॉटन की जैसे, एंड ये शाइन भी करता है सिल्क जैसे. अब यू कैन सी it is similar to cotton, good absorbent of sweat, and it is shining. Now where it is used is, see, it can be used to feel the texture of silk, wool, cotton and linen. So it is mixed to make cotton, to make bed sheets, or mixed with, ये आपके घर में आपने देखे होंगे. It is used in making apparels, dresses, jackets, linings, suits, fats,
ओके, या फिर कोई रेयॉन कैन बी यूजली डाइड इन वाइड रेंज ऑफ कलर्स। कोई भी अगर हम लोग रेयॉन लेते हैं उसको हम लोग डाई करके अलग अलग कलर्स दे सकते हैं। तो दिस इज द कैपेबिलिटी ऑफ रेयॉन। सेकेंड वॉज नाइलॉन। नाइलॉन एक सेकेंड पार्ट है। इट इज वर्ल्ड्स फुल्ली फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। इसमें तो भी हमने वुड पल्प से सेलुलोज लिया था, इसमें कुछ भी नहीं लिया। ठीक है, दिस वॉज डेवलप बाय द साइंटिस्ट दैट कैटोलस। हमें उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ये ये है कि इसमें एक खासियत है। इसको किस किस चीज से बनाया गया? इसको कोल, एयर एंड वाटर एंड एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट से बनाया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। नाइलॉन इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? देयर आर फोर थिंग्स: कोल, एयर, वाटर एंड एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? ये बहुत इलास्टिक रहता है। इलास्टिक, वेरी शाइनी, वेरी सॉफ्ट, स्मूथ, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नाइलॉन रहते हैं। पैराशूट भी हमारे किससे बनते हैं? हमारे रोप्स, जितने भी टफेस्ट जो खींचने वाली चीज है, कोई भी whichever thing मांझा। I need to pull it up. If I need to pull, if I need to push, I need some materials which are very hard. So this is what nylon fiber is there. Done. एंड सबसे अच्छी खासियत कि नायलॉन को कभी फंगस नहीं लगता है। देखो, आपको बॉडी में फंगस लग जाएगा, लेकिन आपके नायलॉन मटेरियल्स पे फंगस जल्दी नहीं लगता है। ये उसकी खासियत है। सो नायलॉन से हमारे क्या क्या बनते हैं पता है? आपके सॉक्स बनते हैं, शर्ट्स बनते हैं, कर्टन्स बनते हैं, देन टेंट टेंट रहता है ना, टेंट, वो भी बनता है। एंड ropes, car seat belt, fishing nets, toothbrushes, paint brushes, Wire. all these things are made up of nylon. Clear? Is it clear? So Sir, you have it. हाँ बेटा. sir, raincoats are also made up of nylon. Yeah. Polyester. Poly means many. Ester. Okay, sir. Yeah. So polyester is another synthetic fiber. It is made up of a repeating unit chemical called ester. इसमें एक रिपीटिंग यूनिट है जिसको नाम है ईस्टर। ओके, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलिस्टर का टेरिलिन। क्या नाम है उसका? Terpene. टेरिलिन। Okay, now polyester fibers are very quite strong. They're always quite strong. Okay, and wrinkle resistance, and also easy to wash and dry. They are also easy to wash and dry. One of the most important things. They are not attacked by any moth or any chemical things. They have a high abrasion of resistance. वो कोई भी चीज में जल्दी, वो हर चीज को रेजिस्ट करता है। वो जल्दी, इतनी जल्दी वो मतलब डैमेज नहीं हो पाता। पॉलिस्टर की ये खासियत है। इसलिए जो हमारी साड़ीज है, साड़ी या जो ड्रेस मटेरियल है, वो किससे बनते हैं? पॉलिस्टर से बनते हैं। ये इसकी खासियत है। ओके, इवन आपके जो वाटर हॉर्सेस है या फिर आपके जो टेरिकोट वाले या टेरीवुल है, वो भी इसी से बनते हैं। आपके खासियत ये पॉलिस्टर की। Acrylic, I'm going little bit fast because we need to do the revision of physics also, and 6 chapters are there. Therefore, if you have any doubt, you can ask me. Acrylic is another wool-like feeling you will be having. It is also an alternative cheap material to wool. Okay, it is also warm, soft, lightweight fiber है, easy to wash, easy धोने में कोई problem नहीं है. It dries quickly and it is easy to dye to various colors. We can give a dye. Okay, what are the advantages of synthetic fiber? See, synthetic fibers are long lasting. ओके, दे आर रेडीली पिक अप टू वेरियस डाइज। हम लोग कोई भी कलर उसमें मार सकते हैं। बहुत स्ट्रेचेबल है। वाटर प्रूफिंग है। वाटर प्रूफिंग का मतलब पता है क्या होता है? जल्दी गीले नहीं होते। हाँ, नॉन बायोडिग्रेडेबल, मॉइस्चर रेजिस्टेंस, स्ट्रेन एंड वेयर रेजिस्टेंस। ये इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज, फ्लेमेबल। फ्लेमेबल मीन्स ऑन हीटिंग It can सिंथेटिक catch फाइबर्स, fire. या जल्दी आग पकड़ लेते हैं। हाँ, Catches fire दे fast. कैन मेल्ट ऑन हीटिंग, एंड जैसे ही मेल्ट होता है तो वो क्या हो जाता है? ह्यूमन बॉडी को स्टिक हो जाता है, और स्टिक होने के बाद बहुत ज्यादा हमें सीवर बर्न्स होते हैं। prone to heat damage, melt easily. They are not eco-friendly. All means कुछ भी eco-friendly नहीं है. They can cause for microplastic pollution. Not suitable for hot washing and poor insulation capacity. Heat capacity इसकी zero रहती है. प्लास्टिक की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। वेदर रेजिस्टेंस, आप कितनी बरसात है कुछ भी कर लो, उसमें वो प्लास्टिक उसको प्रोटेक्ट करता है, कोई भी चीज को जिसमें हम लोग उसको मटेरियल रखेंगे। फायर रेजिस्टेंस, वी कैन से। ड्यूरेबिलिटी अच्छी है। ओके, कट दिस पार्ट, कट दिस पार्ट। नाउ प्लास्टिक के दो पार्ट है। एक जो मेल्ट हो सकता है, रिपीटेडली मेल्ट करके उसको मोल्ड करके बना सकते हैं। एक जो फिक्स्ड हो जाता है, उसको मेल्ट बाद में आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें एक लीनियर चेन कॉम्बिनेशन एंड क्रॉस चेन कॉम्बिनेशन आपके किताब में है।
It is given what is linear chain in thermoplastics and what is cross chain. Cross chain में आपको डायग्राम दिया गया है आपके बुक में. Okay, just go through it once. Thermoplastic are what? ऐसे प्लास्टिक दैट कैन बी डिफॉर्म्ड इजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंड इजिली, जिसको हम लोग हीट करने पे बेंड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक. जैसे पीवीसी पाइप हो गए आपके, या आपके इलेक्ट्रिक वायर के केबल हो गए, या फिर कोन हो गए जो कंघी करने वाले रेनकोट्स, ये सब थर्मोप्लास्टिक्स में आते हैं. लेकिन ऐसे चीजें जो हम लोग एक बार यूज करने के बाद उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, तो जैसे बेकेलाइट एंड मेलानिन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट. एंड इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की सबसे ज्यादा खासियत ये है कि दे आर रेजिस्टेंस, इट रेजिस्ट टू फायर, इट रेजिस्ट टू फायर एंड कैन टॉलरेट ढंग हीट. से हैंडल बनता या दे कैन टॉलरेट हीट. सो पता है इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, जैसे मार्बल टाइल्स हो गए, या किचन वेयर हो गए, या फैब्रिक्स हो गए. दिस आर द एग्जांपल ऑफ दिस. नाउ प्लास्टिक एज अ सर मटेरियल. हाँ बेटा. सर व्हाट विल बी द परफेक्ट आंसर सर, जो आपने सर टेस्ट में क्वेश्चन दिया था, व्हाई बेकलाइट बिकम्स सॉफ्ट ऑन हीटिंग, सर उसका परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है? व्हाई बेकलाइट, व्हाट इज इट बेटा? व्हाई बेकलाइट है। बिकम्स सॉफ्ट हीटिंग. अच्छा, विल कम टू यू, वेट. सर आप हाँ हाँ, आई गॉट ओके इट. सर. जस्ट वेट, ये हो जाए रिवीजन, फिर मैं आपको, डोंट वरी, अदरवाइज फिर और 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे. जस्ट वेट, जस्ट वेट. Okay, now plastics as a material of choice, you know, plastic is non-reactive, light है, strong है, durable है, it can be changed into different shapes, but और सबसे important, वो quite cheap है, सबसे सस्ता है, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. और एक और चीज़ कि वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसकी खासियत है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिक करंट इसके पास से पास नहीं हो सकता. सेकेंड यूज, plastics and the environment, इस टॉपिक इज देयर जहाँ पे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल है. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल एंड व्हाट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल? तो बायोडिग्रेडेबल में वो जल्दी डिसॉल्व हो जाता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब उसको डिकम्पोज होने में टाइम लगता है. ओके, सो डिग्रेडेबल करने के लिए ये उसको, तो clear. डिग्रेडेबल करने के लिए उसको एनवायरनमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो लगेगा ना, उसको ऑर्गेनिज्म लगेंगे. क्या नाम है उसका? डिकम्पोजर्स. व्हाट इज दे, व्हाट आर दे कॉल्ड? Decomposer. Decomposer. An important role in decomposing them. Okay, clear? सर Yes. Coming to metal and non-metal, सबसे पहले ये प्रॉपर्टी वाला चार्ट जो है ना, इसका ये ले लो फिर स्क्रीनशॉट. Lustrous means चमकने वाली चीज, हार्डनेस means toughness, malleability means a property in which substance can be beaten into sheets, ductility means wires, which the wires you see at your home, conductivity means heat and thermal conductivity. Thermal conductivity आपको 10th क्लास में आएगा, हीट कंडक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है. State, solid, liquid, gas and density. Okay, so first of all you need to learn this part. यहाँ पे एक सोनरस प्रॉपर्टी नहीं है ऐड किया उसने. Sonorous. Metals are sonorous, non-metals are non-sonorous. So these are the property I've explained you many times. Okay. Now, most important, whenever reaction of metals, see metal, एक कुछ कुछ materials के नाम याद रख लो. Metal mean sodium, potassium, calcium. मैंने जो लिस्ट दिया था ना वहाँ पे, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाते हैं, ठीक, वो जितने भी मेटल है वो अपने दिमाग में याद रखो जिंदगी भर. Whenever a metal reacts with oxygen, it becomes metal oxide. This is an important answer. एंड सबसे इंपॉर्टेंट, दे आर बेसिक इन नेचर. अब वो बेसिक इन नेचर है तो रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में. दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट. ब्लू. क्लियर? यस सर. सेम रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन, इट बिकम्स एसिडिक इन नेचर. एंड जब एसिडिक इन नेचर है, सल्फर रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन, सल्फर इज नॉन मेटल, ऑक्सीजन, इट बिकम्स एसिडिक. एंड एसिडिक में क्या होता है? ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स इनटू रेड. टेक स्क्रीनशॉट इफ इट्स पॉसिबल. डन. This is part of oxygen with metals and non-metals with oxygen. Now, metal with water. जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड. यू कैन सी. एंड NaOH ये दिख जाता है, ये से याद रखना ये बेस है. और जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, याद रखना एक गैस निकलती है, उसका नाम है हाइड्रोजन गैस. एंड हाइड्रोजन गैस के पास निकलने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, इफ यू टेक एनी बर्निंग थिंग, okay, burning matchstick it is given, but if you keep any burning thing there, you'll get a sound that is known as pop sound. Done. If any metal reacts with acid, you get salt and hydrogen gas. One of the most important thing. Any doubt till here? नो सर.
एनी डाउट? पक्का? श्योर? ओके, वन मोर थिंग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सी, ये दो अच्छे फ्रेंड्स है, अच्छे कोई भी दो फ्रेंड है, ये कोई भी दो फ्रेंड्स है, एंड थर्ड पर्सन इज हियर। व्हाट विल हैपन इफ दैट थर्ड पर्सन इज मोर इफेक्टिव देन ही कैन रिप्लेस एनी ऑफ दैट? ठीक है, नाउ इफ दैट कॉम्बिनेशन बिटवीन ब्लू एंड रेड वाज गुड, ये येलो कलर गया उसके दोस्ती को तोड़ा और अपने साथ कॉम्बिनेशन बना लिया, तो ये कॉम्बिनेशन तभी बनेगा जब ये जो सी वाला है इट शुड बी मोर पावरफुल। सो फॉर दैट यू शुड रिमेंबर दिस पार्ट। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ये एग्जाम में आ सकता है कल। So it is also in our book also. या दे कैन आस्क यू क्वेश्चन रिलेटेड टू इट। कॉपर सल्फेट एंड मैग्नीशियम, तो देखो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा दिस सीरीज, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कॉल मी समथिंग गुड। टिल द टाइम एनी रिएक्शन इज देयर, आपको ये रिएक्शन का पूरा देखना है, एंड देन ओनली यू डिसाइड कि वो रिएक्शन सही है कि नहीं। जैसे एफ ई एंड सी यू, क्या ये सही है क्या, चेक करो। वेयर इज एफ यू, एफ ई एंड सी यू, एंड किसका बॉन्ड है, सी यू एस ओ फोर का बॉन्ड है, वहां पे डबल मार्क डालो। एफ ई ऊपर में है क्या, हाँ ऊपर में, रिप्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा देखो। नाउ आइडेंटिफाई, Yes, sir. या इन 5 रिएक्शन में क्या ये पांचों रिएक्शन सही है कि नहीं है, मुझे बताओ या गलत है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग वन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग वन एवरीवन। Sir, the last one, fifth one. Sir, the third one. Yes, for sure. Okay, so first one, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट देखो कहाँ पे, चलो मार्क द कॉपर सल्फेट। Sir, first one is correct. फर्स्ट वन इज करेक्ट। Yes, sir. First is correct. सेकंड कॉपर प्लस Yes, sir, सिल्वर first नाइट्रेट, is सी correct. कॉपर, The कॉपर second is also correct. सेकंड इज आल्सो The करेक्ट। third थर्ड is incorrect. सोडियम प्लस जिंक कार्बोनेट, सोडियम देखो कहाँ पे, यहाँ पे। जिंक कार्बोनेट कहाँ है, यहाँ पे। हाँ, सो जिंक कार्बोनेट नीचे है, सोडियम ऊपर है, तो जो मटेरियल जा रहा है उसको रिप्लेस करने वाला ऊपर रहना चाहिए सोडियम। जो सिंगल एलिमेंट रहता है वो याद रखना कंपाउंड के ऊपर ही रहना चाहिए। फोर्थ वन इट इज आल्सो करेक्ट। Fifth one. गोल्ड प्लस Fifth The one fifth is one is also also correct. correct. The correct. अच्छा, Yes, sir. One is also correct. फिफ्थ वन, या वेरी गुड, somebody has pointed फिफ्थ वन, गुड ऑब्जर्वेशन बेटा, कुछ तो गड़बड़ है फिफ्थ वाले में। Sir, No, both sir, it's correct. Yes, Sir, sir. correct Both है। sides are पक्का? Sir, because copper is more reactive than gold. गुड, वेरी गुड। ये स्टेटमेंट में रिएक्शन नहीं हुआ क्योंकि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन गोल्ड, आपको एग्जाम में भी यही लिखना है। एनी डाउट बेटा, ये सबसे इजी चैप्टर है। एनी डाउट बेटा? No, sir. श्योर आई No. ओके। सो एग्जाम्स में बी प्रिपेयर कि आपको वो चार्ट लिखना ही है, वो चार्ट लिखना है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ऑलवेज बी अलर्ट ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, वो आना ही आना है आपको। ओके, आपका 5.1 ही आ रहा है केमिस्ट्री में। हाउ कोल वॉज फॉर्म्ड बिफोर द डायनासोर्स, मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स जितने भी थे वो मर गए थे वहाँ पे। सो सालों सालों बाद क्या हुआ, उनके ऊपर लेयर्स बाय लेयर्स, लेयर्स बाय लेयर्स फॉर्म हुए, एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जब अंडरग्राउंड हीट एंड प्रेशर की वजह से जो जमीन के नीचे से निकलता है, दे गॉट कन्वर्टेड इनटू अ फॉर्म कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स, और वही फॉसिल फ्यूल्स को हम लोग आज बोलते हैं, एक उसमें से फॉसिल फ्यूल है हमारा कोल। ठीक है, एक फॉसिल फ्यूल है, उसका नाम क्या है हमारा, कोल। कोल इज द थिंग नाउ। कोल फिर पुराने जानवरों के हड्डियों से बना है। हाँ, कोल क्या, आपका पेट्रोल भी, ऑयल भी। ठीक है, सो कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड, ये थर्मल पावर प्लांट में भी यूज होता है। साथ में कोल से ही हम लोग कोक भी बनाते हैं, कोल तार भी बनाते हैं, कोल गैस भी बनाते हैं, मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों फॉर्म में बनाते हैं। इसी से तो हम बेंजीन वगैरह भी बनाते हैं हम लोग। और आप कोल को हीट करोगे ना तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जाती है, ये भी याद रखो। ठीक है, कोक, कोक क्या है, एक टफ पोरस ब्लैक, टफ है, बहुत टफ रहता है। आप कोक को देख चुके हो, आपको मैंने बताया भी था, इट इज वेरी ब्लैक सॉलिड सब्सटेंस। ओके, अब इसको क्या है,
दिस इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. रिमेंबर, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन कौन है, आपका कोक है. Sir, it Okay. contains When 98% carbon. हाँ, when coal is heated in the absence of air, then coal gas and coal are eliminated and coke is only left. अगर आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे कोयले को हीट करते हो ना, so you will get that coal tar and coal gas are eliminated, only coke will be left there. And it is better fuel than coal, I think so, because pollution कम होता है कोक को आप बर्न भी करोगे तो. ठीक है. It is used to make irons and other metals. That is the most important part. कोल तार आपने ग्रस्ते देखे क्या बनाते हुए? Yes, sir. So Sir. कोल तार तो important. डामर यूज करते हैं. हाँ, वेरी गुड. डाइज, ड्रग्स, परफ्यूम्स जो भी बनाने में हेल्प करता है ये कोल तार होता है. बहुत अनप्लीजेंट स्मेल होती है इसमें, बहुत कम से कम मोर देन 150 सब्सटेंसेस का मिक्सचर रहता है कोल तार. ठीक है. कोल गैस, इट इज अ गैसियस फ्यूल. इट इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोल. जब हम कोल से कोक बनाते हैं ना, तभी हमारा कोल गैस भी बनता है. ये चीज याद रखना. ठीक है. इसका यूजेस कहाँ है? इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्रीज. थर्मल पावर प्लांट में ज्यादा यूज होता है इनका, याद रखना. आपको पेट्रोलियम नहीं आ रहा है. ओके, पेट्रोलियम पार्ट नहीं आ रहा, सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही आ रहा है. यहाँ तक किसी को डाउट केमिस्ट्री में कोई भी पार्ट? बिकॉज ऑलरेडी वी डिड द रिवीजन मेनी No, sir. टाइम्स. No, sir. ओके. सेकंड. Sir, in Sir, will you coal tar there explain? are about 200 substances, not 150. अच्छा, 2 आई नो मोर देन 150. Is I have written. not studied about 200. I'm not exactly sure because it may be 200, but I've studied that it is more than 150. I can guarantee you. In book it is given 200. Okay, then 200. I was remembering only to 150 plus. Okay. Any doubt? Excuse me, sir. बोलो. So the back exercise of the displacement reaction one, that chapter, can you explain the 9th question? What happened when dilute sulfuric acid is poured on a copper plate? Where in which code? In book or what? It's in the Same book. book. 9th question, though you have explained, but that time I was not getting it. So if they are personal question, I'll call you. You call me anytime. I'll help you out. Okay. Monali. Okay, sir. Okay. Yes, sir. So can you imagine वो ये आदमी क्या कर रहा है और ये आदमी क्या कर रहा है? What they're doing? Can you Sir, tell me? one is pushing and one is pulling. Pulling. लेकिन पुश और पुल के साथ एक और चीज बता रहा है आपको. अच्छे से देखो. फोर्स. Sir, applying force. So applying force. फोर्स. ओके, फोर्स. अच्छा, और एक चीज हो रही है उसमें, आइडेंटिफाई करो. Pressure. नो. The muscular force has been applied. Friction is also reacting there. Look from the eye of Arjun. पोजीशन चेंज हो रही है सर. पोजीशन नहीं, एक परफेक्ट वर्ड चाहिए मेरे को. Sir, change in unit state of motion. स्टेट ऑफ मोशन. नो. Sir, the position of that man. इसका मतलब क्या होता है? ये रेड वाले इसका मतलब सामने जा रहा है. Direction, magnitude. या डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. वेरी गुड मोनाली, दैट इज द पॉइंट आई वांटेड. ये क्या कर रहा है? पुश कर रहा है कि पुल कर रहा है? Push. पुश. ये क्या कर रहा है? पुल कर रहा है. लेकिन एक डायरेक्शन दे रहा है कि ही इज पुशिंग इन दिस डायरेक्शन, ही इज पुलिंग अप इन हिज डायरेक्शन. So this is called as force when we apply either it is a push or a pull, and it specify a direction where you are pulling. आप जब फुटबॉल को किक करोगे तो फुटबॉल वही रहता है कि कहीं और भी चल जाता है? डायरेक्शन जाता है कि नहीं आता है? Yes, sir. इफ यू प्ले बैट बॉल, इफ यू प्ले बैडमिंटन, आप जब मारते हो रैकेट, आप जब कोई भी चीज करते हो, खेलते हो, तो दैट बॉल गोज इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. सो यू आर अप्लाइंग अ फोर्स बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. What is the difference between these two images? Can you tell me? One is The applying force and one is not applying force. So if that man is standing, जब उसने फोर्स लगाया नहीं तो गाड़ी वहीं पे है. लेकिन जब वो गाड़ी को धक्का दे रहा है तो गाड़ी आगे बढ़ रही है. It means if we need to apply a force, we should apply a force on an object, but it should be in contact with us. जब तक दो चीजें एक साथ कांटेक्ट में नहीं आएंगी, वो ऑब्जेक्ट और जो फोर्स लगा रहा है, तब तक वो चीज पे फोर्स अप्लीकेबल नहीं होता है. क्लियर? Yes sir. Yes, sir. This topic is exploring force. Can you tell me what is happening in this case? यहाँ पे क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं दोनों? ये क्या moral of the story क्या है यहाँ से? The result in net force. Yeah, result in net force. Why result in net force?
बिकॉज सर एक इसमें वो दोनों एक साथ फोर्स लगा रहे हैं तो ज्यादा फोर्स आ रहा The है power और of दूसरे पिक्चर में 40% are including there. या फोर्स विल बी एडिंग अप, फोर्स विल बी एडिंग अप। Force will यहाँ be पे क्या हो रहा है, अगर इसकी फोर्स ज्यादा है और इसकी Force will अपोजिट subtract. डायरेक्शन में फोर्स कर हाँ, सो यहाँ पे नेट Means of डिफरेंस या फोर्स का नेट डिफरेंस आएगा। अच्छा मुझे बताओ, इसने भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा, इसने भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा, देन व्हाट विल हैपन? sir, net Sir, force उसी will जगह be पे रहेगा सर। ultimately net rest. force will be zero. या इट विल बी ऑब्जेक्ट विल बी देयर ओनली, यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं आएगा, वहां भी नहीं आएगा, वो बीच में रहेगा। क्लियर? Yes. कोई डाउट? No, sir. No, sir. Okay. Now, in this effect of a force, what this man is doing? घास काट रहा है। घास काट रहा है। Force. ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन पे था, स्टेशनरी मींस रेस्ट पोजीशन पे, he is moving up, he is pushing up, ताकि ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करे। he is kicking the ball and is changing the direction. ये क्या कर रहे हैं, ये स्पीड, ये मोशन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं स्पीड, एंड व्हाट ही इज डूइंग, ही इज चेंजिंग द शेप। दिस आर नोन एज Shaping. these are known as the properties where what force can change. So force can change the direction, force can change the shape and size, force can change the state of motion, force also can change the speed of an object. So these are the important point. Koi doubt? No, sir. No, sir. Now, in this phase, type of forces are there. Contact force. यहाँ पे लग रहा है frictional force. Can anyone tell me what is frictional force? Sir, the force of friction always acts on all the moving object and its direction is always opposite to the direction of motion. या ऐसा फोर्स जो मोशन ऑफ कोई भी ऑब्जेक्ट, ह्यूमन बीइंग, एथलीट में भी, ह्यूमन बीइंग, एथलीट में भी, एनी ऑब्जेक्ट, उसको जो अपोज करता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ये जो है नॉर्मल फोर्स है, ये टेबल लाई कर रहा है तो टेबल भी क्या कर रहा है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, और बुक भी टेबल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, दैट इज नॉर्मल फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, ये तो हमें सबको पता है, वेट मशीन वाला फोर्स है। इसमें क्या पता चल रहा है हमें कॉन्टैक्ट फोर्सेस में, कि हमारे दो ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट में है, देखो ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट में, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। बट ऐसा फोर्स जिसमें ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट में नहीं है, जैसे मैग्नेट्स, क्या ये दोनों मैग्नेट आपस में चिपके हैं क्या? No, sir. तो फिर भी Sir. अपने आप को अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं दोनों को एक दूसरे को, क्या कोई रीजन है क्या उसमें? So the opposite side attracts of the magnet. Yeah, why? State the reason. Because particles play an important role, and there's a phenomena called magnetic force which are trying to attract each other due to magnetic force. Similarly is gravitational force. Gravitational force जमीन की तरफ कोई भी चीज को फेंकती है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा पोल्स पे ज्यादा रहती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपने किए कि नहीं किए ट्राई घर पे आज तक? Sir, it इसमें generates. हाँ, so जो ऑब्जेक्ट गेट्स स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस इन देम and then they get starting attracting towards each other. Cool doubt? No, sir. Sir. Now what is this phenomena called? Pressure is equal to force upon area. ये फॉर्मूला याद रखना, कल इसके ऊपर न्यूमेरिकल आने वाला है एक। प्रेशर का यूनिट याद रखो सबसे पहले, इट कैन कम इन द न्यूमेरिकल्स, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। दिस इज द यूनिट ऑफ न्यूटन मीटर फॉर प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड और पास्कल। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रेशर मींस व्हाट? फोर्स अपॉन एरिया। आप कितना फोर्स लगा रहे हो, कितना एरिया पे लगा रहे हो। अब मुझे बताओ, एक मैंने चाकू दे दिया, सबसे पहले कौन सा वाला कट पा रहा है, ये वाला, ये वाला? Sir, first one. Sir, small area. शार्प पार्ट काटेगा। Because the pressure will be more. जितना Area. ज्यादा एरिया कम रहेगा उतना ज्यादा मेरा फोर्स, बढ़ेगा। Increase होगा. और जितना ज्यादा फोर्स रहेगा उतना ज्यादा मेरा प्रेशर अप्लाई होता है। क्लियर? इन दिस Yes, sir. Clear. जितना बड़ा एरिया है उतना कम pressure रहेगा. लेस फोर्स मींस लेस प्रेशर। एनी डाउट? No, no doubts. सेकंड थिंग, प्रेशर क्या लिक्विड में एग्जर्ट होता है क्या? हाँ, अगर आप पानी की बोतल खोलो और उसमें एकदम से होल कर दो, ये पूरा पानी बाहर निकलता दिखेगा। सो इट मीन्स लिक्विड तो एग्जर्ट करते हैं, लेकिन गैसेस भी प्रेशर एग्जिट करते हैं। आप अपने मुंह में बलून जैसा मुंह बनाओ, देखो अपना मुंह फुला के देखो, ओके, एंड देखो कितने देर तक होल्ड कर पाते हो, एंड जब आप गैसेस रिलीज करोगे थकने के बाद देखना गैसेस बहुत सारी निकलेंगी। डू दिस एक्टिविटी विथ मी, यू विल गेट एन एक्सपीरियंस। जस्ट सी टू मी, ओके,
I'm making myself visible to you. Am I visible now? Yes, sir. So if what I'm doing, try it. आपको पता चल जाएगा कि हाँ gases में भी pressure रहता है. That's the reason it is given that liquids and gases exerts pressure. Okay. Friction. Okay. जब भी कोई बॉडी आगे बढ़ रही है उसको अपोज जब करता है कोई भी ऑब्जेक्ट तो उसको बोलते हैं हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अपोजिट टू दैट रिलेटिव मोशन ऑलवेज. मतलब ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन किस साइड में आपको काम करेगा, उसके अपोजिट. अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट में काम करेगा. एंड देयर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन: स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक एंड रोलिंग. ओके, वी कैन से स्लाइडिंग फ्रिक्शन ऑल्सो. स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है बताओ? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है. यस. और कोई? स्टैटिक सर जब दो चीजें रब होती है तो वेरी गुड. remove object from rest. ओके, कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा So है the rest position of an object is हाँ, can be called as static position. या वी कैन से. एंड फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ टू सरफेस. अगर रेगुलर सरफेस है, इरेगुलर सरफेस है, तो वहां पे भी फ्रिक्शन अलग अप्लाई होता है. इरेगुलर रहा और रेगुलर रहा तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कहाँ पे रहेगा? मतलब ऐसे वाले सरफेस में फ्रिक्शन सबसे Irregular में. Irregular. इरेगुलर में. पक्का ये क्लियर है? Yes, sir. अगर मैंने एक हैवी ऑब्जेक्ट दिया, वो 10 किलो का है और एक 5 किलो का है, तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कौन लगाएगा? 10 किलो वाला है 5 किलो वाला? Sir, 10 kilo वाला. 10 किलो वाला. पक्का? अगर मीटिंग लिंक बंद हो जाती Yes, है sir. या मीटिंग लिंक अगर बंद हो जाती है तो फिर से मैं एक लिंक भेजूंगा, उस पर ज्वाइन हो जाना. ठीक है. नाउ अगर मुझे फ्रिक्शन को कम करना है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन मीन्स एक के ऊपर एक जब चीजें रोल होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ठीक है. एंड रोलिंग फ्रिक्शन आपने देखे क्या? रोल करते हुए जो चक्के रोल करते हैं, व्हील जो हमारे गाड़ी के चक्के जो रोल करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन. तो याद रखना, रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. रिमेंबर दैट पार्ट. वो कल आ सकता है आपको एमसीक्यू में. रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. नाउ ये क्यों दिया गया? टायर्स में ग्रिप क्यों है? फुटबॉल के शूज में गिट्स क्यों है? ये वेट बॉल क्यों ऐसा कर रहे घस रहे हैं? कबड्डी प्लेयर ऐसा क्यों तो कर रहे स्लिप हैं? ना हो जाए. We have to increase friction. इंक्रीज फ्रिक्शन. Increase friction. इंक्रीज फ्रिक्शन करने से Yes. क्या होगा? उनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि कम होगी? Sir, बढ़ेगी. जब बढ़ेगी. बढ़ेगी तो उन्हें हेल्प होगा कि उन्हें नुकसान होगा? तो हेल्प होगा. Sir, ग्रिप बना पाएंगे. फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेंट्स अप्लाई करते हैं, जैसे ग्रीसिंग, अप्लाई ऑयल, पॉलिशिंग द सरफेस. कैरम खेलते समय पॉलिश करो, व्हील्स लगाओ, बेयरिंग्स लगाओ, बॉल बेयरिंग्स. देख सी चक्कों में ग्रिप. दैट्स द रीजन. यहाँ तक कोई डाउट? no, sir. एक और चीज. ओके, आपको पता है एटमोस्फेयर में फ्लूइड फ्रिक्शन रहता है. फ्लूइड फ्रिक्शन हम लोगों ने पढ़े कि नहीं पढ़े? फ्लूइड तो फ्रिक्शन. पढ़ा. हाँ, फ्लूइड फ्रिक्शन में क्या होता है? बॉडी का शेप स्ट्रीमलाइन शेप्स है बर्ड्स एंड फिशेस के, सो दैट मिनिमम फ्रिक्शन आपको उनको मिनिमम फ्रिक्शन लगे ताकि वो आगे बढ़ सके, ताकि उनकी एनर्जी कम वेस्ट हो. दैट इज द रीजन. Okay, so frictional force exerted by liquid fluid on an object moving through it depends on speed of the object with respect to fluid और shape of the object and size of the object. सबसे important है shape कैसा और size कैसा है, ये याद रखना. Clear? Now sound, the last part. Should I send you one more link? क्योंकि उसके 1-2 मिनट ही बचे हैं. I'm sending one more link. Wait. Okay? Just wait.